आज गुड मॉर्निंग रंजना जी, गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, गुड Good मॉर्निंग, गुड morning. Good मॉर्निंग टू morning. दिल दिया गल्ला। वेलकम मंडे मॉर्निंग। देखो सितंबर, व्हाट इज इट नाउ, सिक्स्थ। Six. सिक्स्थ टाइम इज फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग। एंड वेलकम टू दिल दिया गल्ला अगेन। आपको देखो, जब भी आते हो तो समझो कि मज़ा ही मज़ा है। वी लर्न सो मच फ्रॉम यू, सो इट्स रियली गुड व्हेन यू कम नरेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगता है हमको। एंड हमारी जो ऑडियंस है, देखो रंजना जी, एवर फेथफुल, एवर ऑल द टाइम। लेट हो गए तो उनको जो टेक्स्ट कर देती हैं, व्हाट हैपेंड वीना जी, मैं लॉग इन नहीं कर सकती। सम टाइम ऐसे होता है लॉग इन करने में, जैसे आज मुझे, मैं लॉग इन करने लगी हूँ Mhm. तो मुझे कहता है, साइन आता है कि यू नॉट अलाउड टू लॉग इन, यू हैव टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट। अब ये सब मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, आप मेरी वेट कर रहे हो, ऑडियंस वेट कर रही है। मैं कहा मैंने अकाउंट क्या करना है दोबारा, मैंने अभी मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज गो इन टू फेसबुक, go into my account, Mhm. and then I got out of it. I went back to square one again, जैसे आपको फिर देखा, and I Mhm. started all over again. Then it was fine. Yeah. ये जो ना टेक्निकल चीज़ें पहले हमको नहीं आती थी करनी, अब सीख के हैं हम भी। बिकॉज दे बिफोर आई टू गेट स्केर्ड, ओह माय गॉड नया अकाउंट खोलना है, अब क्या करें। एक दो बारी ऐसे हो चुका है मेरे साथ, तो You are a Veena ji, you are expert now. नो, एक्सपर्ट नहीं, बट टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं इनका। दे कीप ऑन अपडेटिंग थिंग्स, हाँ यू नो, जी, अपडेट भी तो करते रहते हैं ना ये सब कुछ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग शशि जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वी हैव विद अस on a Monday morning with Dil Diyan Gallan on September 6th. It's going to be a beautiful day today. Actually, it's a Labor Day. Labor Day, who can forget it's a Labor Day, जो यहाँ की कंट्री का कितना बड़ा दिन है। I'm sure everybody is watching we watch on TV and everything. एंड हमारे लिए ये है कि वी हैव नरेंद्र जी विद अस, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। नरेंद्र जी के बारे में थोड़ी मैं बात करना चाहती हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ, लेकिन पूरी इंट्रोडक्शन भी तो देनी चाहिए ना इनकी, इनकी कितनी खूबियाँ हैं जो सबको मालूम होनी चाहिए। तो नरेंद्र जी होल्ड्स ए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड बैचलर ऑफ लॉ डिग्री LLB, and he served United States Treasury Department for 22 years and retired in 2009. He has two sons, Sachin and Sandeep, and they both are physicians. And his wife Urmila is a health professional. In health was in a health profession. She was an RN and was with North Shore LIJ Hospital at Syosset for 26 years and retired in 2010. That means if 2000 अभी तक होती तो 36 years हो जाते, हाँ right, जी, Rinda ji? हाँ 30, जी, 37 years हो जाते. And they both live in Syosset, New York. Narendraji is an initiated disciple of Swami Hariharji Maharaj, founder president of Gita Ashram, headquartered at Delhi, Kent, India, since 1981. Wow, that's what, 40 years now? हाँ जी, Should be 40 years. Wow, that's a long time. Since Arindaji has been sharing the wisdom of Srimad Bhagavad Gita to various strata of American society. He has been visiting universities, colleges, high schools, Srimad Bhagavad Gita. He shared the teachings of Srimad Bhagavad Gita to the students of Gurukul at Sai Temple, Baldwin, New York, Hindu Temple, Flushing, New York, and he's a regular speaker on the wisdom of Srimad Bhagavad Gita at the Shri Ram Sharanam Temple in Hicksville, New York. He also attended and participated in many international Gita conferences. The latest one was in May 2018 at Houston. August 2019 20 में तो pandemic करके नहीं जा सके होगे yeah, ना? I'm sure there was a um, and India Association of Long Island. He was there for about 4 or 5 years, and he used to give sessions, I think, twice a month at हाँ that जी, time. And also with LILC, he did that for about a year or 2 years, and now he's with the Jyoti Ji's program. He comes every once a month, and हमारे program में almost every week आते हैं. Once in a while, when I get a guest from India, मेरे भी इंडिया में से कोई connection है, they like to come. But most of the time नरेंद्र जी होते हैं. And Narinder Kapoor is a board member of Long Island Multi-Faith Forum. He has been making many presentations in the capacity of moderator and panelist. He has been involved in various community projects and activities.
He's also involved in Mahatma Gandhi Jayanti celebrations, Shanti Fund. Recently, he accepted an assignment with Gayatri Gyan Kendra in Melville, New York, to share the wisdom of Srimad Bhagavad Gita to the parents as well as to the students of GGKLI. To foster Vedic culture and ingrain awareness to the younger generation about the phenomenal expertise of Srimad Bhagavad Gita by using the computer illustrations, physics, chemistry, and mathematical skills is the sole objective of Narinder Kapoorji. Mr. Kapoor's articles are published in Newsday periodically. He is also a frequent visitor on ITV as well as Just TV. Narinderji is an accomplished speaker in the art of meditation, motivation, and inspiration. Srimad Bhagavad Gita is his passion and mission. So that's one package right here in front of us. कितनी चीज़ें हैं, इनकी कितनी खूबियाँ हैं. नरेंद्र जी, आपने तो it's good to hear all these things again and again because you do so much for the community, so many organizations, and आपने अभी birthday की बात करी, तो आपका birthday is the same day as Mahatma Gandhi, right? One day before. Both of us? One day before. One day before. हाँ जी. October 2nd को आपका? Mahatma Gandhi, October 2nd. Oh, 2nd. I thought it was 1st. No? No, No. mine is first. And also, what about Shastri ji? He's also. His birthday. That I'm not sure at this time. Yeah, they were saying that yesterday his birthday is I think the same day as Gandhi ji. So the two big leaders. Anyway, so we are having a very today. I asked yesterday. I asked Narinder ji, मैं कहा भी क्या subject क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि anger management. You know, anger management is I think a very important subject because in every phase of life, every day, we have a situation जिसमें हमको थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, कुछ हो जाता है. So we should have the techniques how to control ourselves, and you know, and also in the world you see so much anger management. सब कुछ anger management में ही सब कुछ कितनी चीज़ें हो रही हैं सारी दुनिया में. So नरेंद्र जी, आप you can tell us, guide us a little bit about how to control ourselves and what tips you can give us about the subject. Is a very broad subject, I know that, but आप थोड़ा हमको welcome again to this. First of all, I must compliment you for giving the introduction, and it made me very humble. No. I have been a very humble servant of the social system, and thank you very much. Regarding the subject, the anger management, which we are going to discuss in detail, this is a problem in this era because people are tense, people are fearful, they are anxious, there is a lot of anxiety, people don't sleep, and in the social circle, tit for tat, and in kitty parties, tit for tat, and after attending those activities, people are totally out of shape. I'm talking emotionally. Because if somebody says something to somebody, it is the reaction. Most of the people react right away, but people who don't react, they hold it. And that holding part is a very dangerous thing also. So let us understand what is anger. Anger होता क्या है, किसको कहते हैं anger? Anger is the chemistry of our emotions, which is out of balance. ईश्वर ने हमारा जो शरीर बनाया है, ये बड़ा calm and quiet है. और in the entire world, 7.8 billion people, सबका ऐसा ही है, किसी का different नहीं है. ये जो हमने कंट्रीज बना ली हैं ग्लोब को काट के, आर्टिफिशियल बाउंड्री रखी हुई हैं, ईश्वर ने नहीं बनाई, ये हमने बनाई है, मैन मेड बाउंड्रीज हैं. तो उनमें रहकर ऐसे ही हमने अपना अंदर का जो सिस्टम है, वेरी ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है. देखो आप छोटी सी ग्राई मुंह में डालते हो, एंड व्हाट हैपेंस टू दैट, यू हैव the individual has no control over that. The whole body is automated.
वो अपने आप डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, अपने आप आपकी आंखें देखती हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं at the same time. Even now at this time we are talking, we are seeing, we are watching. So the whole body is very coordinated, Yes. and that is the beauty of the creation. Lekin the problem is when we mess up with this body in the status of ignorance. एक तो ignorance होती है, and some time we do intentionally also. So let us say there are many books and many research documents available on anger. But today we are going to talk in the light and wisdom of Srimad Bhagavad Gita, because this is the very profound universal Yes. philosophy, and each and every word is applicable to the entire universe. Because at that time there were no religion, nothing was there. So it addresses the problem of the human being, and we are all human beings. There are two verses in Srimad Bhagavad Gita. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति ब्रह्मसा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. So it is a 7-step with composition of the anger and the consequences. So the idea is dhyayato vishyan pumsa. The moment we think something, and we associate with that, it could be an idea, it could be an object, it could be a car, it could be a house, it could be a job, it could be a people. The moment we think of that individual or that subject, and we associate ourselves with that subject, ध्यायतो ध्यान आता है जब विषयान पुंसा, कि ये विषय रूपी ये जो वर्ड है, इसमें कहीं भी, जैसे एक आपके पास कार है, तो एक आपके हाईवे में साथ में कार और निकली और वो स्पीड अप करके निकल गया, तो आपको बड़ी अच्छी लगी कि ये तो बड़ी बड़ी अच्छी कार है, आप भी कार में बैठे हैं, लेकिन अब वो कार अच्छी लगने लगी. So that our attention is shifted to that car. So now inside I am thinking I should also get this. I have a car. There is no problem. I am driving that. I am on the highway, but still on the highway, I attached myself to some other thing. So now the moment I attach to something, it could be a person, it could be an idea, it could be anything. The moment I attach to that subject, now this is called the attachment. When there is an attachment, there is a desire now. Yeah, I should get it. Mm-hmm. Right? That's true. That is Ayato true. Vishyambo Sangarsteshu Sanga Sanjayate Kama. Kama means the obsession to get it. Kama does not mean sex. Kama means attachment to get it. So now I have a very profound desire to get that subject. In this case, that car, right? And now I don't have the resources. I try my best. I don't have the resources. I go to This one second. This obsession can be for anything, like you just said. Like some guy likes किसी lady को या किसी woman को उसके पीछे पड़ जाए. So that's an obsession also. obsession. So it could be for anything, right? Yeah. Any object, anything. So it could be in an idea, some person, thing, object, anything. Anything. Once we attach ourselves through our thoughts, then the desire develops. I should get it, right? Yes. So once I develop a desire, then immediately it is transformed into action. Oh. Desire जो है वो action में बदल जाता है. And once I take the action, there are two options. Either I will get it or I will not get it. Either I will be successful or I will be a failure. Right. So once I am successful, I am happy. आपको सुख मिलता है.
लेकिन जब फेलियर होती है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है और उसमें दुख भी है, राइट? सो Yeah. सुख और दुख आपने पैदा किया थ्रू योर डिजायर. The Right. desire transformed into action. Action. Yeah. Actions have two options, either success or failure, Failure. right? तो सक्सेस में तो आप बड़े सुखी हो कि भाई जो मांगा था मिल गया, लेकिन इट डज नॉट वर्क दैट वे. तो जब फेलियर आती है, Hmm. now this is the disappointment, right? This is the seed point of anger. कि भाई उसके पास भी है, उसके पास भी है, मेरे पास क्यों नहीं? Hmm. उसको वो इतना पॉपुलर है, ये इतना पॉपुलर है, मैं पॉपुलर क्यों नहीं? उसका मकान, आपका मकान बहुत सुंदर है, लेकिन आप एक पार्टी पे गए हो, उनका और भी सुंदर है, तो आप वहाँ डिजायर पैदा हो गई. Oh my God. ऐसा Yeah. होना, लेना देना कुछ नहीं था, आप तो पार्टी पे गए थे, लेकिन लेके आ गए हम डिजायर, और डिजायर ने जो एक्शन में बदलना है. और एक्शन की ये टू ऑप्शंस हैं, सक्सेस और फेलियर. इधर यू गेट इट और यू डोंट गेट इट. Yes. You get it, it's all right. If you don't get it, which you don't get many times. So now this is this anger point. Now you are angry. Why I'm not getting it? Everybody has it. Has it? So ध्यायतो विषयान पुंसा संघर्ष तेषु पजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते. क्रोध means now you are angry. And yes. और anger जो है, it is an energy. जैसे हमारे शरीर में एक ही एनर्जी है. अगर when if you are, I am just giving you the example, if somebody is very angry और उसको कहा जाए कि now laugh, he cannot laugh. Right. Angry man cannot laugh. That's Right. true. Or the person who is laughing, he cannot be angry, Right. right? So it means it is the same energy. It is the same energy. We are using it differently. जैसे कुकिंग गैस है, आप कितनी सब्जियां बनाते हो, कई कुछ बनाते हो. The whole our existence is depending on that cooking gas. कई Right. चीजें बनाते हो, लेकिन अगर आप उसको खुला छोड़ के बाहर चले जाएं हम, तो वो घर को जला देगी. Yeah. Same energy, Yeah. right? So it depends. So as a prudent person, I must know कि अगर मैंने कुकिंग भी करनी है तो किस चीज के लिए कितनी हीट चाहिए, राइट? Right. फिर That's वो सब्जियां जल जाएंगी आपकी. जल जाएंगी. बिल्कुल ठीक बात और है. अगर कुछ नहीं मैं बना रहा तो आई शुड क्लोज इट, Yeah. close the gas or cooking, जो whatever the arrangement is. So the same principle is applicable on our body, in our body also. Our body, last time I think we discussed, our body is made up of two components. एक है 5 ग्रॉस एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है. अर्थ है, उसमें स्काई है, फायर है, Fire. एयर Yeah. है, राइट, एंड वाटर है. ये 5 महा तत्व जो है, इससे ये आउटर फ्रेम जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, जो एक्सरे में आता है, जब हमारी एक्सरे होती है, तो वो स्केलेटन इन 5 चीजों से बना हुआ है. लेकिन उस स्केलेटन के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है. वो 3 कंपोनेंट है उसके, आपका माइंड, आपकी बुद्धि और आपकी ईगो. माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो. तो इसको 8 एलिमेंट्स को प्रकृति कहते हैं संस्कृत. एक बात मैंने पूछनी थी नरेंद्र जी, ईगो एंड एंगर, आर दे कनेक्टेड in some way? Very much. That is why I am going in that direction. Yeah, exactly. That's what I'm thinking. So these 8 elements, ये लाइफलेस हैं, इनमें लाइफ नहीं है. लेकिन जब जीव आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो परमात्मा का अंश है, जिसको स्पिरिट कहते हैं, जिसको हम सोल कहते हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी. जब आत्मा के रूप में हमारे शरीर में वो एंटर करती है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है, तो इस शरीर में जान पड़ जाती है, ये फंक्शनल हो जाता है. Right. जब वो आत्मा शरीर से निकलती है, तो इट इज जस्ट ए स्टोन. हम इसको क्रिएशन में ले जाते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शनैलिटी खत्म हो गई. लेकिन जब जितनी देर हम जिंदा रहते हैं,
तो उसमें ये जो 8 एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है ईगो, जिसको कहते हैं। ईगो का मतलब होता है, एक है अभिमान, एक है स्वाभिमान, यस, एक है सेल्फ रिस्पेक्ट विच इज स्वाभिमान, एंड एवरीबॉडी शुड हैव दैट। और ईश्वर ने आपको ऐसी इंटेलेक्ट दी है कि आप अपना स्वाभिमान रखो, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है, आप ही हो, आपका डुप्लीकेट कोई नहीं है, किसी का कोई डुप्लीकेट नहीं। राइट, इतनी बड़ी वैरायटी में एक ऐसी चीज पैदा होनी जो आप हो या मैं हूँ, हमारे जैसा कोई और है नहीं, इसको कहते हैं स्वाभिमान। स्वाभिमान, लेकिन ये स्वाभिमान के साथ एक और फिर पार्ट आता है कि भी ये जो मुझे बनाया है, जो मैं किसी से मिलता ही नहीं है, 7.8 बिलियन लोग इस धरती पे हैं, लेकिन हम बिल्कुल अपने आप में मेरे जैसा और कोई नहीं है। कोई नहीं तो, है, बिल्कुल तो फिर यूनिक, वी आर यूनिक, वी आर बेसिकली एवरीबॉडी इज यूनिक, यू नो, एक ही है यूनिकनेस। then you are thankful to the Almighty प्रभु। हे प्रभु, आपकी कृपा से आपने मुझे बनाया है, मैं आपका ही काम करूंगा। अगर मेरी जैसे और होते तो और बात थी, आपने सिर्फ मुझे ही बनाया है, तो आपने बनाया है तो मैं आपके काम करूंगा। लेकिन अब एक तो मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड स्वाभिमान, ईश्वर के काम करना, क्योंकि ईश्वर ने इस शरीर दिया है, ये हमारी स्पीच भी उन्हीं की है, आंखें भी उन्हीं की हैं, तो उनके काम करना, विच मीन्स टू सर्व द ह्यूमैनिटी, नॉट टू डिस्ट्रॉय द क्रिएशन, किसी को दुख ना देना, कंपैशन में रहना, वो सारी की सारी जो गॉडली क्वालिटीज हैं उसकी डायरेक्शन में अपने जीवन को बताना, राइट, उसको कहते हैं स्वाभिमान। एक है अब दूसरा रूप अभिमान। अभिमान की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है, टू प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट। अब आपने इसको समझना है कि एक ये अभिमान इसको कहते हैं। स्वाभिमान तो ओरिजिनलिटी है कि आप ईश्वर के अंश हो और ईश्वर का काम कर रहे हो, उसमें सेल्फलेसनेस इज द बेस। लेकिन ये जो अभिमान है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है, वी आर प्रिटेंडिंग व्हाट वी आर नॉट। नॉट, यस, दैट्स ट्रू। देखो ये कैसे काम करती है कि when we start using the word I, that is the starting point of ego. ईगो, राइट, जिस चीज के साथ हम आई लगाते वही हैं लगाते हैं, यस, वो ईगो का एक्सटेंशन है, that is the extension of ego, ईगो, and we call it I-ness. So we create a kingdom of I-ness कि ये मेरा घर है। अभी देखो, ये बात कहने से पहले जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ सम अदर थिंग कि ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है जिसको हम देख रहे हैं, हाँ जी, कई लोग कहते हैं कि ये माया है, इट इज इल्यूजन, ये रियलिटी नहीं है। जो वो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन वो गलत भी है कि अगर ये रियलिटी नहीं है तो ईश्वर की बनाई हुई चीज कोई डुप्लीकेट नहीं होती। राइट, ये नहीं कि ये आर्टिफिशियल है तो ईश्वर की दुनिया कोई और है, यही है। तो ये माया नहीं है, माया हम क्रिएट करते हैं। ये राइट, ये जो यूनिवर्स है, इट बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी प्रभु, राइट, राइट, माय राइट, गुरु, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, तो ये सारा का सारा संसार उनको बिलोंग करता है। लेकिन जब मैं इस संसार को अपना संसार बनाना शुरू कर देता हूँ, जिस पे हम अपनी स्टैंप लगाते हैं आईनेस की, ये मेरा घर है। देखो जमीन तो किसी की होती नहीं, हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं हजारों लोग इसमें रह चुके हैं, आपने तो कहीं से खरीदा है, राइट? अभी लाइन लगी है हमारे पीछे इसको खरीदने के लिए। तो जमीन का टुकड़ा तो किसी का भी नहीं है, ये तो ईश्वर का है। शुक्र का, लेकिन जब मैं अपनी स्टैंप लगाता हूँ, ये घर मेरा है, ये जॉब मेरी है, ये वाइफ मेरी है। देखो हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, राइट? ये वाइफ है, ये बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं, कोई किसी के साथ आया ही नहीं, कोई जाता भी नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ ये मेरे हैं,
दैट इज द डिल्यूजन, उसको कहते हैं माया, कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि नथिंग बिलोंग्स टू मी, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए, राइट। लेकिन इसमें जो हम किंगडम क्रिएट करते हैं वो इल्यूजन है, illusion, yeah, वो that's क्योंकि देखो किसका कितना भी रिच हो, फेमस हो, राइट, कुछ भी नहीं रहता, बड़े बड़े पावरफुल किंग हो गए, बड़े बड़े ब्यूटीफुल क्वींस हो गई हैं, वो मिट्टी का निशान भी नहीं है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड माया, इल्यूजन, कि हम अपना क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम कहें कि हमारा कुछ नहीं है, तो आपका जो माइंड है उसमें गुस्सा आ ही नहीं सकता। yes, that's true. तो तब आता है जब यू आर पोजेसिव, इधर इट कुड बी एन आइडिया, आपने मुझे कुछ बात कही, राइट, मैंने नहीं मानी, तो नो इट्स ए प्रॉब्लम फॉर यू, कपूर साहब को खाई लो भाला ही लिए, राइट। तो यू मे नॉट टेल मी समथिंग, लेकिन अंदर का सिस्टम आपका अपसेट हो गया, हो गया, क्योंकि आपने माना कि ये मेरा विचार है। तो right, एंगर का जो है वो ईगो के साथ, जिसकी ईगो जितनी स्ट्रांग है वो उतना ही एंग्री है, angry है, वही मैं कह रही हूँ ना, connect, they're both connected, different डायरेक्ट words, कनेक्शन, connection both, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। proportionate, yeah, ईगो कम कर दो, एंगर कम हो जाएगा, ईगो स्ट्रांग कर दो, एंगर स्ट्रांग हो जाएगा। हो जाएगी, तो एंगर इसलिए है कि आपकी जो इमोशंस हैं, इमोशंस वो तो एक ही है। मैंने अभी आपको बताया कि इफ यू आर वेरी हैप्पी, आप हंस रहे हो किसी बात पे, मैंने आपको कोई ऐसी बात कही, आप हंस रहे हो, हंसते हंसते आपको मैं कहूँ कि आप मेरे पे गुस्सा करो, यू कैनॉट, no, यू कैनॉट, इधर यू विल they're लाफ। two different, they're totally two different emotions, तो एकदम बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट हैं, तो कैसे एकदम कन्वर्ट करके गुस्सा कर लो, या गुस्सा वाले बंदे को बोलो स्टार्ट लाफिंग, एंड इमोशन एक ही है, takes time to transfer from one to the other, you know, इमोशन एक है, लेकिन आई एम यूजिंग डिफरेंट। different, जैसे मैंने कुकिंग गैस का बताया है कि यू आर यूजिंग द कुकिंग गैस डिफरेंट टाइम डिफरेंटली, yeah, तो ये जो एंगर है, एंगर का मतलब है कि ये मेरी जो एनर्जी है उसको मैं एट एज इतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले आता हूँ, और माय होल, हमारी 3 बॉडीज हैं, एक है फिजिकल बॉडी, एक है इमोशनल बॉडी, एक है स्पिरिचुअल बॉडी, एक है IQ, right, एक है EQ, राइट। अब ये जो EQ है, इमोशनल क्वोशेंट, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है yes, व्हेन आई एम एंग्री। तो जब आप एंग्री होते हो, ये जो एंगर की फॉर्मेशन मैंने बताई आपको कि कैसे एंगर आता है, इट कम्स थ्रू योर डिजायर which is transformed into action. For action, I have 2 options: success or failure. Success is okay, you accept it. Failure, you are angry. You are angry. Now, this is the starting point. And the other thing which I just shared with you, that in this body, there is one Abhiman, एक है Swabhiman. Swabhiman means I am unique. मेरे जैसा कोई नहीं. कोई नहीं है, But I belong to Almighty. एंड ऑलमाइटी, प्रभु वाहे गुरु के मैंने काम करने हैं, ये मेरी प्रोमिनेंट थॉट होनी चाहिए कि जो भी मैं काम करूं वो उनके लिए करूं। जब हम उनके लिए करते करेंगे तो हम ऐसे ही, तो उसमें ये कि जब मैं अन्न खाऊंगा, जब मैं रोटी खानी है, तो आप अपने लिए नहीं खाओगे, आप प्रभु के लिए खाओगे। तो जब प्रभु के लिए खाओगे तो उसमें क्वालिटी होगी, गंदमंद तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि जो उनके हमने स्थान बनाए हैं, जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, वहां तो हम ऐसी चीजें करते नहीं है। तो इसके अंदर भी ईश्वर ही बैठे हैं, क्योंकि ये उनकी बॉडी है। तो आई शुड बी वेरी केयरफुल, व्हाट इज माय डाइट। मैं अपने दोनों हाथों से मुंह खोलकर क्या अंदर डालता हूँ। हम समझते हम खा रहे हैं, हम प्रभु के लिए खा रहे हैं। अगर ये थॉट है तो आप देखो कि आप खाने के वक्त कितना सोचते हो। तभी हम प्रार्थना करते हैं, खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं सारे सारे। बट ऑल्सो खाने का भी डिपेंड करता है, व्हाट आर वी ईटिंग। को गरम जो जो एंगर वाली डाइट भी तो होती है ना, देयर सम थिंग्स दैट वी ईट दैट कैन ट्रिगर एंगर आल्सो, आई थिंक। और जो हम खाते हैं उसका जो गरम चीजें मेटाबॉलिज्म बनता है, हाँ, तो
कोई उस किसी को दूध पिलाओ, तो दूध पी के वो ड्राइविंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं विस्की पी के ड्राइव करूं, so there is a problem, There is a right? problem, yeah. So that now Definitely. this is a very clear example. If food affects my body, if Yes. whiskey will upset me, right? My judgment, but milk will. Driving, देखो ना, driving में भी, let's say अगर किस, if you go to a party or something, तो father, family बैठी हुई है, अगर husband drive कर रहा है and पीछे पूरी family, बीवी बच्चे बैठे हुए हैं, is taking everybody's, सबकी life risk में डाल रहा है. It's a selfish thing to do that, to drink and then drive, but जैसे आपने बोला ना, ईगो होती है, नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं होता, मैं तो ठीक हूँ. There are a lot of people like that too. तो वो किसी को और को ड्राइव कर, बीवी को ड्राइव करने नहीं देंगे, खुद ही करेंगे वो. lot of मैंने देखा है, मैंने, I mean I hate to say this thing, but there are a lot of men, they don't want the wife to do it. I don't know why. I really don't know. This is not good. This is, and It is a problem. There's a problem in the, anything can happen. The whole, everybody's life is with that one guy who's drinking, drink करके drive कर रहा है. Once you are on the driving seat, Yeah, it is a big responsibility. big responsibility. Yeah. So going back to our anger management, so food affects our body, our judgment, right? तो विस्की से जजमेंट जो कंप्रोमाइज होती है, Yeah, बिल्कुल. दूध से नहीं होती. So it is a clear example that whatever food we take, it affects our body, right? That's the thing. Yes. Yeah. So now the idea is, जब हम एंग्री हो जाते हैं, अभी तो हम जो ये डिस्कस किए कि एंगर कैसे आता है, तो अब फर्ज करो मैं एंग्री हो गया, तो एंगर जब आ जाता है तो उसमें व्हाट इज द लिटमस टेस्ट कि ये बंदा एंग्री है. अगर कोई बंदा बड़ा एंग्री है लेकिन चुप है, आपको कुछ नहीं कह रहा, पर अंदर से बड़ा एंग्री है, तो उसकी पहचान क्या है? अब भगवत गीता का यही तो ज्ञान है. तो इट गोज लाइक दिस, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते. दिस इज द फोर्थ स्टेप. जब आप एंग्री हो गए हो, पहले आपने 3 स्टेप्स लिए हैं. डिजायर पैदा की है, अटैचमेंट पैदा की है, उसमें आपको फेलियर मिली है, फेलियर के थ्रू नो यू आर एंग्री. ये आपने स्टेप लिए हैं, किसी ने नहीं लिए. हम मतलब आपको मैं इसलिए वैसे ही कह रहे हैं, किसी ने भी अगर एंग्री में है तो उसने ये स्टेप लिए, तो अब वो एंग्री आपने ये स्टेप बताया, जैसे somebody is in really एंगर में है, तो उसको to bring him back, to bring him down, नो उसमें ये है, काम करने के लिए, उसको एंगर से काम करने के लिए, those the steps. I think we all should practice that, everybody. उसमें नहीं, उसके पहले हमें ये समझना है कि जो बंदा एंग्री है, एंग्री उसको एंगर आ गया है, तो उसका होता क्या है? उसका होता क्या है? But he also has to admit कि मैं कोई एंगर में हूँ. To take the step, he has to admit कि मैं, वो जो प्रिवेंशन करनी है कि नहीं, वो जो पहले 3 स्टेप हैं उसमें प्रिवेंशन हो सकती है. बट वंस यू आर एंग्री, देन दिस जो मैं वर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ भगवत गीता की, जो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो फिर उस एंग्री आदमी का होता क्या है, क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता. एंगर होने से पहले उसको रोक दिया जाए, जो 3-4 स्टेप वो ले रहा है वो ना ले, तो एंगर नहीं आएगा. लेकिन वंस कभी आपको कोई एंग्री हो गया है, तो उसका पहला है जो डाउनफॉल ये है, क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता. he will not go पीछे, he will go forward. right. क्रोधा भवति सम्मोह. तो जब any person who is angry, he become hypnotic. उसकी जजमेंट इतनी क्राउड हो जाती है, चाहे उसकी वाइफ सामने खड़ी हो, उसका बड़ा प्यारा बच्चा सामने खड़ा हो, बेस्ट फ्रेंड खड़ा हो, उसको ये पता नहीं चलता. वो जैसे हिप्नोटिक स्टेज नहीं, जैसे आपको हिप्नोटाइज कर देता है, राइट. तो हिप्नोटिक स्टेज पे वो चला जाता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे सामने कौन खड़ा है.
कौन खड़ा है, राइट। आंखें तो देखती हैं लेकिन उसकी इमोशन नहीं देख रही उसको, उस जिसके ऊपर एंगर है उसको। तो संगस्तेषु ध्यायतो विषयाम पुरुषा संगस्तेषु उपजायते संगः संजाते कामा कामा क्रोधः भवति सम्मोह। सम्मोह मीन हिप्नोटिक स्टेट। वो हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है उसके सामने खड़ा कौन है, क्या कहना है। एंड देन द अदर, जो इसके बाद जो होता है उसके साथ, तो उसके जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इट इज टोटली कंप्रोमाइज्ड। ओके। ऐसा एंग्री बंदा जो गलत को ठीक समझता है, ठीक को गलत समझता राइट, राइट। है, ये उसकी पहचान है एंग्री बंदे की। कि उसकी जो है हिप्नोटिक स्टेज में वो गलत चीज को ठीक समझ रहा है और ठीक को गलत समझता है। समझ रहा है, यू राइट। आपने देखे हैं कई लोग जो आपको ऐसी बात कह देते हैं लेकिन बाद में वो पैरों को हाथ लगाते हैं, तो आई एम सॉरी, यस, यस। मुझे बहुत मुझे मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। या वो तो है। तो इसीलिए हुआ कि उसकी जजमेंट क्राउडेड थी, उसको जो रॉन्ग था वो राइट लग रहा था, राइट था वो रॉन्ग लग रहा था। तो ये जो जब ये जजमेंट पावर जब खत्म हो जाती है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जिसकी द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो हिज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा जो जिसको एंगर आया उसकी जो वो हिप्नोटिक स्टेज में चला गया, एंड देन हिज जजमेंट इज क्लाउडेड नाउ। वो राइट को रॉन्ग समझ रहा है, रॉन्ग को राइट समझ रहा है। ऐसा जब हो जाता है तो ऐसे आदमी का जिसका भी ऐसी स्टेट है वो डाउनफॉल है। वो वापस नहीं आ सकता इस एक्शन में, इस एक्शन में। तो तभी कई लोग जो है जब ऐसा कर देते हैं, जब वो शांत होते हैं, तब वो लोगों के पैरों को टच करते हैं, 1000 बार माफिया मांगते हैं। बट द हार्म इज डन ना, हार्म तो हो गया बोलने से। द हार्म हैज बीन डन ऑलरेडी, बाद में तुम सॉरी कर रहे हो। But the damage is done. Damage is done. Damage is done, वही मैं मतलब harm is done and जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ऐसी क्या बात है कि एंगर ना आए, क्योंकि आ गया तो फिर अगर एंगर आ गया है तो दिस इज द अदर 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं। राइट, राइट। हिप्नोटिक हो जाएगा, जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कंप्रोमाइज्ड एंड ही विल डू सर्टेन वेरी बैड थिंग्स। तो उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, या लेकिन व्हेन द डैमेज इज डन वो आपके पैरों को टच करेगा, वो रिवर्स करेगा, लेकिन नाउ द डैमेज इज डन। जिसको आपने डिस्ट्रॉय करना था आप तो पहले डिस्ट्रॉय हो गए। ये तो है। तो दूसरे को तो इतना फर्क नहीं पड़ा, आपको ही पड़ा था क्योंकि आपने सब कुछ किया। तो भगवत गीता की जो विजडम है, जो ये चैप्टर है हमारा आज का टॉपिक, वो ये है कि ये एंगर आवे ना, तो एंगर ना आए, क्योंकि आ गया तो फिर तो डाउनफॉल है, ना आए तो उसके लिए ये है, उसके जो गुड पॉइंट्स है कि मुझे एंगर ना आए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जिसको लेट्स से आई एम गेटिंग, अंदर से मुझे लग रहा है मुझे गुस्सा चढ़ने लगा, आई एम गेटिंग अपसेट अबाउट समथिंग, कुछ भी हो जाए ट्रिगर, हाउ डू आई काम माय, अपने आप को कैसे उसका शांत करो, हाउ डू यू सप्रेस दैट एंगर कि आगे ना बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा कुछ यू नो लाइक आई एम गेटिंग लिटिल बिट अपसेट, मुझे ऐसा ना प्रोग्रेस, ये जो आपने लिखा है पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ तक ना मैं पहुँचूँ, तो अपने आप को कैसे कंट्रोल करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज लॉट ऑफ अस गो थ्रू दैट एवरी डे, कि अपने आप को कैसे शांत में ब्रिंग योरसेल्फ डाउन so that it doesn't go those 4 steps, we don't go to that 4 steps. It's a beautiful question. This is called the prevention of anger. Yes, that's this is the issue of anger management, right? Yes, anger management, yeah, exactly. So the first step, we should be very careful not to create attachments. Okay, that's the thing.
ओके जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, राइट, वी आर टॉकिंग, एक पार्टी में लोग कई बातें करते हैं, तो कई लोग हैं दे वांट टू विन, चाहे वो राइट है रॉन्ग है, जो भी डिस्कशन हो रही है दे वांट टू विन दैट डिस्कशन, राइट. यस यस So why that individual he or she is doing, because he or she is attached to his thinking. उसको ये नहीं पता कि भाई the other person I should listen, he may be right. राइट If I keep my mind open mind means non-attachment. Don't attach to your own thinking, right? अगर मैं अपनी thinking से, विचारों से attach नहीं हूँ, तो then I will give you lot of reception. कभी मैं वीना जी को सुनूं, ये क्या कह रहे हैं, and then what is the best, that should be the idea of discussion. लेकिन लोग जो हैं वो हर बात को जीतना चाहते हैं, क्योंकि they are attached to their thinking, कि जो मैं कहता हूँ सोचता हूँ ऐसा कुछ ये होता है. तो फिर वो ईगो की बात आ गई ना, वो तो ईगो की बात आ गई फिर. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ईगो एंड एंगर आर टोटली दे प्ले गेम विद यू, बोथ जगह दे बोथ प्ले द वो रोल. डिफरेंट नेम है, हाँ डिफरेंट नेम है, या बट बात वही है. वही है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, इट्स द सेम. ईगो के थ्रू हम पोजेशन क्रिएट करते हैं. यस एग्जैक्टली. अभी मैंने आपसे शेयर किया कि नथिंग बिलोंग्स टू अस, राइट अगर फंडामेंटल रूल है, लेकिन जितनी देर हम जिंदा हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो इसी बल्लेवे में, इसी फेरी टेल में रह रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ये कार मेरी है. भाई तेरी नहीं है, तो जस्ट यूजिंग. लीज में आजकल तो लीज में 2-3 साल की कर लो. अगेन इट्स नॉट योर्स एनीमोर, इट्स नॉट योर्स रियली, लीज करी हुई है. देखो तो यू शुड थिंक जैसे इन हम दैट कहते वे. हैं, नहीं विनय, जैसे आपने आप बड़ा अच्छा कहा कि जैसे हम कहते हैं कार लीज पे है, right? ऐसे ही आपका शरीर भी लीज पे है. बिल्कुल ठीक बात, ये तो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग तो कि जैसे हर एक आप चीज, नथिंग इज आवर्स, नथिंग इज आवर्स, नथिंग इज फॉर अस. आई नो. तो इवन जैसे आपने तो ये भी कहा था, मुझे याद है एक बारी, कि जो और हमारी लीज का और फैमिली लीज है, वी शुड नॉट हैव टू मच अटैचमेंट विद आवर ओन फैमिलीज, राइट. और लीज का बच्चों मतलब के ये साथ. नहीं होता मिस यूज और अब्यूज, आप हाँ उसका ध्यान रखते हो, अदरवाइज यू विल बी स्टक विद दैट प्रोडक्ट. या क्योंकि हमने साइन किए होते हैं. जैसे कार की लीज है, ऐसे शरीर की लीज आपने वाहिगुरु जी से लीज साइन की हुई है कि आई विल यूज इट, आई विल नॉट मिस यूज एंड अब्यूज इट, आई विल यूज इट फॉर योर डीड्स, योर टास्क, टू मेक दिस क्रिएशन मोर ब्यूटीफुल. आई विल, बिकॉज उस लीज में लिखा हुआ है. तो दैट इज द थिंग. व्हेन ईगो जिसको मैनेज करनी आती है, ईगो का मतलब है ओपन अप योर माइंड, ओपन अप. जब आप हम अपने बॉक्स में, ईगो का मतलब है वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इन आवर बॉक्स, यस और उस बॉक्स में आप उन्हीं लोगों को रखते हैं हम जो हमारी प्रेज करते हैं. जब वो प्रेज करना बंद कर देते हैं तो वो हमें अब अच्छे नहीं लगते. आदमी तो वही का वही रहता है. क्योंकि that's मेरा that is माइंड, ego. 100% ego again ego का रोल आ गया ना. so first thing is the attachment. I know. Don't attach to things, to the ideas, to the possessions, to the enjoy the. अदरवाइज हम ईगो के किंगडम में रहते हैं, और ईगो के किंगडम में सबसे बड़ी बात सेल्फिशनेस. ये तो है. तो तो अगर मैं इसको माइंड को सेल्फलेस मोड ऑफ स्टेट में ले जाऊं, तो मेरे जितने भी काम होंगे उसमें एंगर आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा. तो रंजना जी पूछ रही है कि डिटैचमेंट, हाउ डू वी डिटैच. रंजना जी नेक्स्ट टाइम इसको आंसर करेंगे. अभी और भी थोड़े क्वेश्चन लेकर आए आप, तो रंजना जी नेक्स्ट वीक आएंगे एंड वी कैन कंटिन्यू, बिकॉज दिस अ वेरी broad subject and very important questions we have. I'm requesting everybody here to please send one question to Narinder ji. जो भी हमारे friends आए हैं यहाँ पर, ईना is here from California, शैली जी आप भी आए हैं, and everybody who else is here, शशि जी हैं,
Ranjana ji hai, and of course going to be a lot of other people. Today is being a holiday. We have lot of Indra bhi abhi yahan par thi. Quite a few people here today, but I request everyone to send one question each, so that next week when Narinder ji comes, we can touch on those subjects and those questions, because these are long questions. We have to answer them. Abhi time bhi ho gaya hai hamara, almost 1 hour, so we will continue next week with the same subject. Narinder ji, please याद रखिए that Yeah, next week हम यही करेंगे फिर दोबारा. yeah, we So will we'll take do the up same where thing. we And yeah, Nandini ji, good morning. आप भी क्वेश्चन तैयार कीजिए regarding anger management, because we're going to answer next week. Ka session is going to be answering the questions which you ask about this subject. That's going to be the topic for next week. So please do that. Write us. And I'm going to thank you for joining us today. Do let us know if you want to see anything else in particular in this platform, Dil Diyan Gallan. But next week, like I said, Narinder ji ko question kijiye. And next session में करेंगे हम. And don't forget to like and comment and share our program. You can also subscribe to YouTube, Dil Diyan Gallan on YouTube channel and Instagram, and links for both the accounts will be, I'll put them over here soon in this platform. And I would like to say thank you so much for joining, and thank you so much, and have a wonderful Monday. Labor Day hai. Please enjoy with your family, and if you have some plans in the evening, do have a good time.